Hi friends, this is Vishal here again with yet another video on Vastu Shastra. As always, with interesting facts and details which you all love to hear and understand. Okay, so as we had gone forward, my first video in which I had said that Vastu is something related to our Vedas and Vedas is something related to the well-being of a person. So it is a triangular function that is there, or a triangular pattern that is there, where yoga comes first, which means which specifies on the pranavayu, the pranayam part. Then comes your vastu, which looks upon all the dwelling parts and the other things or the objects that a person use for the well-being. And the third thing comes as the an or the ayurveda or the anaushadam that we talk about. So this is the core of Veda, and these are the parts. The Vastu is the part of it, right? So as we look at the Vastu as a whole, we look at many things: the directions, the plot, the properties of each directions, the properties of numbers when we go up to, as we have seen the previous videos, when we go up to specific numerology or the customized Vastu that we talk about. But then the part that we miss is, I had covered one thing as mirrors, right? The part that we missed is the objects. Objects are also a part of the Vastu because they are made up of certain materials, they are made up of certain elements. So they'll have that sort of vibrations coming out of it, that sort of energy coming out of it, and it will automatically affect the place that you occupy or the place where you stay or the place where you do your business, right? So today the object that I will be covering is a very common object which would be there in each and everyone's household, and it is a very powerful thing in terms of Vastu, and it is nothing other than our wall clock. Yes, my friends, the simple wall clock that we understand is something which can bring you great fortune or can bring you great misfortune also. Okay, so if we understand in a manner that what about the wall clock, right? So what is a wall clock basically? If I'll take it very generally, or the way if you can differentiate any of the object, then what is or how is that you can relate, you will come to understand. तो what is a wall clock? Wall clock क्या है? तो wall clock वो चीज़ है जो टाइम दिखाता है, right? It is something that shows up the time. एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वॉल क्लॉक? वॉल क्लॉक की अगर हम प्रकृति देखें तो कंटिन्यूअस टाइम दिखाना उसकी प्रकृति है, उसका नेचर है. तो क्या हम ये चीज़ को किसी चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं क्या? वास्तु में या ऑकल्ट में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट रिलेटिंग द थिंग्स विद द एलिमेंट्स, विद द एनवायरमेंट, विद द डायरेक्शंस, to understand or get the ideas out of it or get the better solutions out of anything, right? तो continuous चीज़ों के साथ अगर मैं relate करूँ एक wall clock को, तो एक तो है कि अपना जो हृदय है, अपना जो हार्ट है, वो भी एक चीज़ है जो continuous beeping देता है या throbbing करता है, right? तो it can be related to that also. Second thing है कि कंटिन्यूअस है तो नियमबद्ध है. तो नियमबद्ध चीज़ों के साथ अगर मैं उसको रिलेट करने को जाऊँ तो मैं नियमबद्ध चीज़ में सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ आती है तो आगे भी हमने पढ़ा है कि सूर्य से ज़्यादा बलवान कोई भी प्लानट नहीं है, राइट? सूर्य है तो सब कुछ है ये पृथ्वी पे. तो सूर्य का सबसे बड़ा ट्रेट अगर हम कहें या सबसे बड़ी विशेषता हम कहें तो वो नियमबद्ध है, वो नियमित चलने वाली चीज़ है. चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने समय पे आएगा, सनराइज होगा और अपने समय पे सूर्यास्त होगा, वो होकर ही रहेगा. तो वो नियमबद्ध चीज़ है. तो दूसरी चीज़ अगर हम वॉल क्लॉक को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या वो नियमित भी है? तो हाँ, वो नियमित है. हृदय वो भी नियमित है. वो अगर थ्रॉबिंग करना बंद कर देगा, वो धड़कना बंद कर देगा तो आदमी का अस्तित्व का अंत हो जाएगा, एक तरीके से वो शरीर का अंत हो जाएगा. तो अगर इतनी सारी चीज़ों से हम रिलेट करके देखें इसको, तो
क्या ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है? अगर हम अपने आप को क्वेश्चन पूछे कि अगर इसकी क्वालिटीज़ इतनी ज़्यादा है, इतनी हायर लेवल्स की है, तो क्या उसका प्लेसमेंट इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ का? यस माय फ्रेंड्स, ज़रूरत से रहेगा। और अगर मैं इस तरीके से देखूँ कि जो चीज़ों के साथ मैं रिलेट कर रहा हूँ तो उसका डायरेक्शन भी वही तरीके से निकलेगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं देखूँ तो इसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए, यस। नॉर्थ होना चाहिए, यस। नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए, यस। साउथ कभी भी भूल करके भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ का और एक इम्पोर्टेंस है कि जो भी चीज़ कंटिन्यूस थ्रॉबिंग पॉइंट पे है वो वाइब्रेशंस क्रिएट करती है, ठीक है। वो एक ऊर्जा, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे कि वो डायरेक्शन जहाँ पे आपने उसको इंस्टॉल किया है या लगाया है, वो डायरेक्शन के वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं उससे, क्योंकि वो एक कंटिन्यूअस नियमबद्ध प्रोसेस से चल रहा है। अगर हम कहें कि कोई भी चीज़ आप कंटिन्यूअसली करो, कंटिन्यूअसली कोई भी स्किल है या कोई भी वर्क है, अगर आप डेली वो चीज़ कर रहे हो तो एट लास्ट क्या होगा? आप वो चीज़ में ज़ाहिरतर वो चीज़ को मास्टर कर लोगे, वो चीज़ में आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, तो उससे आपको फ्रेम मिलेगा, नेम मिलेगा, कोई टाइम पे वेल्थ भी मिलेगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर हम नियमबद्ध करते रहे, कंटिन्यूएशन में करते रहे, तो वो चीज़ का इम्पोर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्शन के साथ देखूँ तो नॉर्थ और ईस्ट वैसी डायरेक्शंस है जो वेल्थ और फेम की है। तो अगर मैं घड़ी लगाऊंगा कहीं पे मेरे घर में, तो या तो वो नॉर्थ वॉल पे रहेगी या तो ईस्ट वॉल पे रहेगी। सबसे बेस्ट है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कोई भी रूम का रहे, उस पे रहे। पर भूल के भी ना मैं उसको वेस्ट पे लगाऊं और कभी भी भूल कर पे ना तो मैं उसको साउथ में लगाऊं, क्योंकि अगर साउथ में मैंने अगर घड़ी लगा दी तो मैं उसके जो बुरे परिणाम है वो डायरेक्शन के, उसको मैं अपने घर के अंदर बुला रहा हूँ, वो एनर्जीज की वाइब्रेशन में बढ़ा रहा हूँ। तो क्यों हम वैसा करेंगे? हम जानकर के ये चीज़ को अनजान बने रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज ही मैं अनुरोध करूंगा, हर किसी के घर में जाइए, एक बार देखिए कहाँ पर आपकी घड़ी है, और अगर वो कहीं साउथ में आ रही है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि साउथ में लगाई हुई घड़ी इल हेल्थ ला सकता है, लॉस ऑफ वेल्थ ला सकता है। दूसरा, अगर कोई घड़ी का प्लेसमेंट कोई दरवाजे के ऊपर भी है तो भी माना जाता है कि वो कोई ना कोई टाइम पे कोई बड़ा आपको लॉस का न्यूज़ आ जाए, कुछ वैसा इशू हो जाए, क्योंकि वो जो एक ऑरा बनता है पूरा, जिसमें से एंट्री एग्जिट होती है कोई भी चीज़ का, उधर वो चीज़ को रखना सही नहीं माना जाता। तो उसको प्लेस कीजिए नॉर्थ या ईस्ट की वॉल पे, पर ऐसी जगह पे प्लेस कीजिए कि एक सॉलिड ब्लॉक हो, तो अवश्य से वो आपको अच्छे परिणाम देगा और अच्छी तरीके से वो आपको आगे बढ़ने में हेल्पफुल होगा, और आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, आपकी जितनी भी मेहनत है, उसको एक तरीके से पार पाड़ने में या फुलफिल करने में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू लॉट एंड हैव अ नाइस डे।